Jai Hind, dear students. Today we will start our last poem from Hornbill book of class 11th. Poem number 5, Father to Son. It is written by Elizabeth Jennings. बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की हॉर्नबिल बुक की आखिरी कविता फादर टू सन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे एलिजाबेथ जेनिंग द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम पोयम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Elizabeth Jennings' full name is Elizabeth Joan Jennings. She was born in July 18, 1926 in Boston, England, and died in October 26, 2001. She was an English poet whose works relate intensely personal matter in a plain spoken, traditional, and objective style, and whose verse frequently reflected her devout Roman Catholicism and her love of Italy. She was educated at Oxford High School and St. Anne's College in Oxford. Her first pamphlet poems appear in 1953, followed by A Way of Looking, which won her Somerset Maugham Award and enabled her to visit Italy. एलिजाबेथ जेनिंग्स का पूरा नाम एलिजाबेथ जोन जेनिंग्स है। इनका जन्म 18 जुलाई 1926 में बोस्टन, इंग्लैंड में हुआ और निधन 26 अक्टूबर 2001 में हुआ। वो एक अंग्रेजी कवित्री थी जिनकी रचनाएं एक सादे, पारंपरिक और उद्देश्यपूर्ण शैली में गहन व्यक्तिगत मामलों से संबंधित हैं और उनकी कविता अक्सर उनके धर्मगुरु रोमन कैथोलिकवाद और इटली के प्रेम को दर्शाती हैं। जेनिंग्स की शिक्षा ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल और सेंट एनीज कॉलेज में हुई। उनका पहला पैम्पलेट पोयम 1953 में दिखाई दिया और अ वे ऑफ लुकिंग, जिसे 1955 में समरसेट मोगम पुरस्कार दिया गया और उन्हें इटली जाने में सक्षम बनाया। आइए हम पोयम का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द पोयम फादर टू सन is written by Elizabeth Jennings. The poem is about anguish of father who does not have a good relationship with his son. His son is now grown up and is busy in his life. The father is bitter about the generation gap between them and the feeling of separation. He shares his feelings by saying he does not know much about him and there is no sign of understanding. He wants their relationship to be just like when his son was a child. He is trying his best to resolve the issue, but he is in vain. Therefore, they are drifting apart. बच्चों, फादर टू सन कविता के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि फादर टू सन कविता एलिजाबेथ जोनिंग ने लिखी है। कविता में उन्होंने पिता की पीड़ा को दर्शाया है क्योंकि उनके बेटे के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। उनका बेटा जो अब बड़ा हो गया है और अपने जीवन में व्यस्त है। पिता के मन में उनके और पुत्र के बीच में पीढ़ी का अंतर पड़ जाने के कारण रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ गई है। वो कहते हैं कि अब वो अपने बेटे की पसंद नापसंद को नहीं समझ पा रहे जैसा कि बचपन में समझते थे। वो चाहते हैं फिर से उनका रिश्ता वैसा ही हो जाए जैसा बचपन में था। वो इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं पर सब व्यर्थ है और इसलिए वो अलग अलग धारा में बह रहे हैं। फर्स्ट आई विल रिसाइट द पोएम एंड देन एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। पोएम नंबर 5, फादर टू सन। इट इज़ रिटन बाय Elizabeth Jennings. I do not understand this child. Though we have lived together now
in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. The speed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence, surround, Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. I do not understand this child, though we have lived together now. In the same house for years, I know nothing of him. In the first stanza, the poet says he shared his feeling about his relationship with his son. He says that although they both had lived together in the same house for many years, yet he does not understand him. He does not know anything about his son, his like and dislike. Further poet कहते हैं, so try to build up relationship from how he was when small, yet have I killed. He tried to build up a relationship with him from the time he was vain. He was vain and small. His son has changed as he has grown up. इस पंक्ति में कवि अपने बेटे के साथ अपने संबंध के बारे में और अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हालांकि वो दोनों कई सालों से एक ही घर में रहते हैं, फिर भी वो उसे नहीं समझते। वो अपने बेटे, उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब वह छोटा था तब उसके संबंध अच्छे थे, पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका व्यवहार बदल गया। तो कवि कहते हैं ही वॉज वेन स्मॉल, जब वो छोटा था, येट हैव आई किल्ड, क्या मैंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया? वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं। फर्दर पोइट कहते हैं द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। आई वर्ड पोइट ने खुद के लिए यूज़ किया है। द फादर यूजेज आई इन द फर्स्ट लाइन to acknowledge his role communication gap between them. He says that he has sown and seed of the birth in the land that did not belong to him. He, despite all efforts, his son was in another place that the father cannot access. इस पंक्ति में आई का इस्तेमाल पिता अपने लिए करते हैं और कहते हैं कि जिस बीज को मैंने बोया था और समझा था कि उस ज़मीन पर मेरा अधिकार है, पर ऐसा नहीं है। उनके प्रयास के बावजूद उनके संबंध उनके बेटे से अजनबियों की तरह हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव आई कैन नॉट शेयर। दे यूज टू टॉक टू ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर and there was no sign of understanding between them. His child used to look like him and yet he did not know what his son loved. पोइट कहते हैं कि वो दोनों अजनबी जैसी बातें करते हैं, लगता ही नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। उनका बेटा उनकी ही तरह दिखता है, फिर भी वो उसकी पसंद नापसंद को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट पैरा में पोइट कहते हैं साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। देयर इज साइलेंस बिटवीन देम। एज अ चाइल्ड ही वॉज अ प्रोडिगल सन एंड नाउ हिज फादर वॉन्टेड हिम टू रिटर्न टू हिज हाउस
the one he knew. इस पंक्ति में उनके बीच जो शांति छा गई है, जो चुप्पी छा गई है, जब वह छोटा था तो वो एक खर्चीला बेटा था, पुत्र था। अब वो पिता चाहते हैं कि वो अपने घर लौट आए, rather than see him make and move his world. वह नहीं चाहते कि वो इधर उधर भटके और अपनी नई दुनिया बनाए। I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. वो कहते हैं, he says he was ready to forgive him and left go the sorrow he had inside because of the distance between them. He wanted to love him again. वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं और उन दुखों को भुलाने के लिए भी तैयार हैं जो उस दूरी के कारण पैदा हुए। वो फिर उसे प्यार करना चाहते हैं। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speak, I cannot understand. The son speaks for the first time and explains what he feels. He says, we both feel sad about the distance between us. He shares that he is at a point where he does not understand himself. इस पंक्ति में बेटा पहली बार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और कहता है, हम दोनों ही अपने बीच बनी इस दूरी से दुखी हैं। वो कहता है कि वो एक ऐसी धरती या ऐसे संसार पर है जहाँ वह एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोन फ्रॉम ग्रीफ, हिज एंगर अराइज अबाउट ऑफ हिज सैडनेस, इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट ऑन बोथ साइड्स लाइज द सेम फ्रस्ट्रेशन अबाउट द गैप इन देयर रिलेशनशिप। उसका गुस्सा उसकी उदासी का कारण है और वो इस संबंध के बिगड़ जाने के कारण निराशा में है। We each put on an empty hand, longing for something to forgive. They both want to forgive each other, and yet they cannot find a solution to the problem. Both of them put out an empty hand for the other to seek, always in vain. वो कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, परंतु वो इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे। दोनों ने ही अपने खाली हाथ आगे बढ़ाए, पर वो व्यर्थ रहा। आइए हम इस पोएम की समरी को देखते हैं। द पोएम इज अबाउट द agony ऑफ अ फादर वेयर ही rants about the understanding relationship with his son, who is now a grown up. He shares that although they had lived together in the same house for years, he does not understand him, he does not know anything about him, and even if he tried to build up a relationship with him, like the one when he was a small child, he was in vain. कविता एक पिता की पीड़ा के बारे में है, जहाँ वह अपने बेटे के साथ असंतुष्ट संबंध के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, वो अपनी भावनाओं को साझा करते हैं कि वो वर्षों से एक ही घर में रहते हैं, फिर भी अब वो उसे नहीं समझ पा रहे। वो अपने संबंध वैसा बनाना चाह रहे हैं जैसा बचपन में था, पर सब व्यर्थ है। फर्दर ही सेज दैट इवन इफ हिज सन लुक्स लाइक, yet he does not know what he loves. He acknowledges the communication gap and lack of understanding between them, and they speak like strangers. His son is in a different place which he cannot access due to the increasing gap. There is silence between them. He is ready to forgive his prodigal son. He wants to accept his back to the house, the one which is always new. He does not want his son to move around the world. He is longing to love him. आगे वह कहते हैं, भले ही उनका बेटा उनके जैसा दिखता हो, फिर भी वो उसे नहीं जानते कि क्या वो उन्हें प्यार करता है। वह संचार अंतराल और उनके बीच समझ की कमी को स्वीकार करते हैं। वो अब अजनबी की तरह मिलते हैं, उनके बीच अब खामोशी निवास करती है। पीढ़ी अंतराल के कारण उनके बीच गहरी खाई बन गई है। वो अपने पुत्र को क्षमा करने को तैयार हैं और उनके संबंध को सुधारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा अनजान दुनिया में भटके
और अपने पुराने रिश्ते को वापस पाने के लिए तरस रहे हैं। The son finally speaks up and shares what he feels. He is at a stage where he cannot understand himself. He feels grief about the growing distance between them, and he is angry due to the grief and sadness. They put out an empty hand towards each other, but none of them hold it. They want to forgive each other, yet couldn't find a solution to the problem. उनका बेटा जो महसूस करता है वह उनसे कहता है कि वह जिस मुकाम पर है उसे उसके पिता समझ नहीं सकते। उसे इस दूरी का दुख है और इस दुख के कारण वह गुस्सा होता है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाया पर दोनों ही उसे मिला नहीं पाए। वो एक दूसरे को क्षमा करना चाहते हैं पर अपनी समस्या का हल नहीं निकाल सके। आइए अब हम इस पोएम की कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। रिलेशनशिप यानी अंडरस्टैंडिंग, साइन यानी ट्रेस, डिज़ाइन प्लानिंग, सराउंड्स ऑल राउंड, प्रोडिगल एक्स्ट्रावेगेंट, शेपिंग गिविंग फॉर्म, ग्लोब वर्ल्ड, ग्रीफ डीप सॉरो, लॉन्गिंग डिज़ायरिंग। इस पोएम की कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को देखें। सिमिली जिसका अर्थ होता है दो चीज़ों में समानता बताना, जैसे वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, जिसमें स्पीक और स्ट्रेंजर एक दूसरे की समानता बताते हैं। सेकेंड डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है सेम लेटर का लगातार बार बार आना, जैसे हम इस लाइन में देख सकते हैं, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, जिसमें सीड, स्पेंट और सोन सा का साउंड दे रहे हैं। तीसरी डिवाइस है मेटाफोर। मेटाफोर का अर्थ होता है डायरेक्ट कंपेयर करना। तो इस पोएम की इस लाइन में देखा जा सकता है, द सीड आई स्पेंट और सोन इन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन यहाँ शो करा है सेकेंड लाइन में। इसी तरह हम पोएम की अगली लाइन में भी देख सकते हैं, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, जहाँ पे प्रोडिगल के बाद पंक्चुएशन मार्क दिखाई दिया है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन टॉक अबाउट अ फेयरली यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, द फादर इज यूजुअली बिजी with his work and is not able to take out time for his child. When the father grown older and has free time, his son gets involved in his busy life and has no time for his old father. This cycle is universal. यह कविता पिता से पुत्र या फादर टू सन एक सार्वभौमिक अनुभव के बारे में बात करती है। जब बच्चा छोटा था तो पिता अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे थे, परंतु जब पुत्र बड़ा हो जाता है और पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका पुत्र का जीवन बहुत व्यस्त हो जाता है और वो अपने बूढ़े पिता को समय नहीं दे पाते। इस तरह यह चक्र यूं ही चलता रहता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द पोएम। दिस पोएम गिव अस अ मैसेज अबाउट डैमेज रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। यह कविता पिता व पुत्र के असंतुष्ट रिश्ते पर प्रकाश डालती है। पिता या पुत्र को जीवन की व्यस्तता के कारण अपने रिश्तों को वक्त नहीं मिलता। आजकल हमें भौतिकवाद यानी मटेरियलिस्टिक होने के साथ साथ वास्तविकवादी भी होना चाहिए, यानी रियलिस्टिक भी होना चाहिए। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार के कारण यह समस्या नहीं होती थी। परिवार के जो सदस्य होते थे वो बुजुर्गों को समय देते थे, लेकिन आज एकल परिवार होने के कारण ये समस्या दिखाई पड़ती है। हमें अपनी संयुक्त परिवार वाली पुरानी परंपरा को समाज में फिर वापस लाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।